ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. વિચારો, તમારી પાસે તમામ ભૌતિક સુખ સગવડતાઓ છે, પરંતુ તે ભોગવવા માટે તમારું સ્વાસ્થ્ય તમારો સાથ ન આપે તો શું કામનું? હાલના સમયમાં આધુનિક જીવનશૈલી, રહેણીકરણી અને ખાસ કરીને તો ખાણીપીણીમાં ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે. આપણી જ કુટેવોના કારણે આપણું શરીર રોગોનું ભોગ બનતું જાય છે અને તેની માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વિપરીત અસર પડે છે. ત્યારે રાજકોટના કુવાડવા રોડ પર આવેલું ધ મિડો વેલનેસ સેન્ટર નાનામાં નાની સમસ્યાથી લઈને કેન્સર જેવી મોટામાં મોટી બીમારીઓનું પ્રાકૃતિક રીતે નિદાન કરે છે. જાણો કઈ રીતે અબ તકના આ વિશેષ અહેવાલમાં. થી લઈ પાલખી સુધીની આપણી જીવનયાત્રામાં જાણે અજાણે આપણી જીવનશૈલી અને રહેણીકરણીના કારણે આપણે રોગોના ભોગ બનતા હોઈએ છીએ. પરંતુ કુદરતે આપણા શરીરને અનોખી શક્તિઓ પ્રદાન કરી છે. શરીરમાં જે ખામીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેને પહોંચી વળવા માટે આપણું શરીર સક્ષમ છે. આ સાથે પ્રકૃતિ પાસે દરેક રોગના ઉપચાર રહેલા છે. પ્રકૃતિ અને માનવ પ્રયત્નોનો શ્રેષ્ઠ સમન્વય એટલે રાજકોટમાં સ્થિત ધ મેડો વેલનેસ સેન્ટર. जिंदगी की सभी समस्या का राज प्रकृति के अंदर छुपा है. बस अपना नजरिया और गहराई से देखने की जरूरत है. बचपन से ही माउंटेन को देखना और अलग अलग दूर घने जंगलों में समय बिताना मेरा शौक रहा है. मैंने हजारों थेरेपी सेंटर में विजिट किया है और पता लगा कि आम पब्लिक को थेरेपी 6 महीने में गहराई से कोई नहीं कर पाता. बस एक दिन यही आइडिया जुनून में तब्दील हो गया और तब बना द मिडो. प्रकृति का तराशा और मेरे जुनून की मिट्टी से सिंचा हुआ द मिडो, जहाँ लोग आए और खो जाए एक प्रकृति के अद्भुत वातावरण में. यह प्रकृति नहीं, ये एक जुनून है जिसे कड़ी मेहनत और लगन से सिंचा है. और पेश है आपका अपना मिडो. यह कोई रूढ़िवादी थेरेपी रिसोर्ट सेंटर नहीं, बल्कि आज की मशीनरी लाइफ के लिए एक विराम और एक नई शुरुआत है. प्रकृति की गोद में बसा द मिडो हर किसी का मन मोह लेता है. और जब पब्लिक यहाँ थेरेपी लेने आती है तो बस उसका अंदाज एवं नजरिया ही बदल जाता है. प्रकृति के प्रति हमने आम पब्लिक की पूर्णतया थेरेपी की व्यवस्था की है, जिसमें वे अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ दिन निकाल कर आते और अपनी जीवन शैली को बदल देता है. गुजरात का ताज है राजकोट और राजकोट का ताज है द मिडो. ભાગદોડ ભર્યા જીવનની સફરમાં શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાત્મક આરોગ્ય માટે આરામદાયક વિસામો એટલે ધ મેડો વેલનેસ સેન્ટર. અહીંયા દરેક રોગ, સંપૂર્ણ શરીર શુદ્ધિ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે તમામ સગવડો ઉપલબ્ધ છે, જેમાં પંચકર્મ, સત્કર્મ, વિવિધ મસાજ, જલનીતિ, આઈ વોશ, ફિઝિયોથેરાપી, જીમ, યોગ, મેડિટેશન, એક્યુપ્રેશર, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ, બનાના લિફ્ટ બાથ, તંદુરસ્ત અને શુદ્ધ આહાર જેવી તમામ સગવડો અહીં ઉપલબ્ધ હોય છે. વ્યસ્ત જીવનશૈલીના કારણે આપણે સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપી શકતા નથી. તેમજ બેસી રહેવાના કારણે મોટાભાગના લોકોને ખભા, ગરદન અને કમરના દુખાવાની ફરિયાદ રહેતી હોય છે. ત્યારે આ સ્ટોન મસાજ આ દુખાવાથી રાહત અપાવે છે. આ મસાજમાં જ્વાળામુખીમાંથી મળતા લાવા પથ્થર અને કોકોનટ ઓઇલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પથ્થરથી માત્ર એક જ વાર 45 મિનિટ સુધી મસાજ કરવાથી સાંધાના દુખાવા, આર્થરાઇટિસ, મસ્ક્યુલર પેઇન જેવા દર્દોમાં 50% રાહત મળે છે. આ સાથે માંસપેશીઓને પણ મજબૂત બનાવે છે, તેમજ માનસિક તાણમાં પણ રાહત આપે છે. પરંતુ જે લોકોને હાર્ટ કે બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય, કેન્સર હોય, તેવા લોકોને આ મસાજની આડઅસરો થાય છે. અન્યથા આ મસાજ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
પોટલી મસાજ એ પંચકર્મ ટ્રીટમેન્ટ છે. જડીબુટ્ટીથી ભરેલી પોટલીથી શરીર પર માલિશ કરવામાં આવે છે, જેને પોટલી મસાજ કહે છે. આ પોટલીમાં નિરકુંડી, આકડાના પાન, આદુ, લસણ, રાઈનું તેલ, રાઈ જેવી આયુર્વેદિક ઔષધિઓની પોટલી બનાવી તેને આયુર્વેદિક ગરમ તેલમાં બોળીને મસાજ કરવામાં આવે છે. જડીબુટ્ટીઓની ગરમી શરીરમાં પહોંચે છે, જેથી આ મસાજથી સાંધાના દુખાવામાં રાહત મળે છે. તેમજ ગંઠિયોવા, સંધિવા, લકવો, બ્લડ સર્ક્યુલેશન જેવી તકલીફોમાંથી તુરંત રાહત મળે છે. આ સાથે તે બોડીને રિલેક્સ કરવામાં અને મૂડને રિફ્રેશ કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક કે કેન્સરના દર્દીઓ પર આ મસાજની વિપરીત અસર થાય છે. કટી એટલે કમર. કમરના દુખાવા માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય કટિબસ્તી છે. કમરનો દુખાવો આજના સમયમાં સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. ઘણા લોકોને ઉઠતી વખતે, સૂતી વખતે તેમજ અન્ય કામ કરતી વખતે કમરમાં દુખાવો થતો હોય છે. આ સારવારમાં કમરના ભાગને અડદના લોટથી ઢાંકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આયુર્વેદિક તેલને કમરના ભાગ પર ભરીને રાખવામાં આવે છે. આ ઉપાય બાદ કમરનો દુખાવો, બટર પેઇન, ગાદી ખસી જવી જેવી તકલીફો દૂર થાય છે. આ સાથે સાયટિકાનું દર્દ અને માંસપેશીના દુખાવામાં પણ રાહત આપે છે. તેમજ ચેતાતંતુઓને ઉત્તેજિત કરી પોષણ આપે છે. કમરનો દુખાવો દૂર કરવા આ એક શ્રેષ્ઠ આયુર્વેદિક સારવાર છે. જાનુનો અર્થ થાય છે ઘૂંટણ. આજકાલ ઘૂંટણ અને સાંધાના દુખાવાનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. જેઓને ઘૂંટણની સમસ્યા છે અથવા જેમને ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવાની જરૂરિયાત ઉદ્ભવી છે, તેમને માટે આ પદ્ધતિ વરદાન સમાન છે. આ પદ્ધતિમાં ઘૂંટણની ફરતી બાજુ અડદના લોટની રીંગ બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં આયુર્વેદિક તેલ ભરવામાં આવે છે, જે માંસપેશીઓને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવામાં મદદ કરે છે. આ સારવાર બાદ ઘૂંટણનો દુખાવો, સ્નાયુનું ખેંચાણ જેવી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. આ સાથે શારીરિક ક્ષમતામાં પણ વધારો થાય છે. આ પદ્ધતિ ઘૂંટણને યોગ્ય રીતે કાર્યરત રાખવા તેમજ ઘૂંટણને લગતી સમસ્યાઓ દૂર કરવા ખૂબ જ મહત્વની છે. પગના તળિયે કાંસાની વાટકીથી ઘી દ્વારા મસાજ કરવાની પદ્ધતિ હજારો વર્ષ જૂની છે. જે પદ્ધતિમાં હવે આધુનિક મશીન આવતા આ પદ્ધતિ સરળ બની છે. આ સારવાર દ્વારા શરીરમાંથી ગરમીનો નિકાલ થાય છે. પગના તળિયે ઘી ઘસ્યા બાદ શરીરની ગરમીના કારણે ઘી કાળું પડતું જાય છે. 5 થી 10 મિનિટ સુધી આ મસાજ કર્યા બાદ તરત તેની અસર દેખાવા લાગે છે. આ સારવાર બાદ વ્યક્તિ હળવાશ અનુભવે છે, તેમજ વાત, પિત્ત અને કફને બેલેન્સ કરે છે. આ સાથે નીંદર, તાણ, માથાનો દુખાવો, નંબરના ચશ્મા ઉતારવા, ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાઓમાં આ મસાજ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે. વ્યક્તિ માટે શારીરિક તેમજ માનસિક બંને સ્વાસ્થ્ય એક સમાન અગત્યના છે. હાલના ઝડપી યુગ સાથે કદમથી કદમ મિલાવવા જતા લોકો માનસિક સમસ્યાઓનો ભોગ બનતા હોય છે, જેની શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ વિપરીત અસર થતી હોય છે. ત્યારે શિરોધારા પદ્ધતિના ઉપયોગથી મનને શાંતિ મળે છે. શિર એટલે માથું અને માથા પર કરવામાં આવતી ધાર એટલે શિરોધારા. આ સારવારમાં પદ્ધતિમાં માથા પર આયુર્વેદિક તેલની ધારા કરવામાં આવે છે. આ સારવાર મુખ્યત્વે માથાનો દુખાવો અને માનસિક તાણની સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિનો અહેસાસ કરાવે છે. તે ચિંતન અને એકાગ્રતા વધારવા અને મસ્તિષ્કને શાંત કરવા માટે ઉપયોગી છે. આ સાથે વાળ ખરવા, માથામાં ખોડો, ઊંઘની સમસ્યા, થાઇરોઇડ, પીસીઓડી, હોર્મોન ઇનબેલેન્સ, થાકની સમસ્યાથી છુટકારો મળે છે.
માટીમાં અનેક પ્રકારના મિનરલ્સ આવેલા હોય છે જે શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ત્યારે માટીના ઉપયોગથી થતી સારવાર એટલે મડ થેરાપી. આ થેરાપીમાં માટીમાંથી પેસ્ટ બનાવીને શરીરના અંગો પર લેપ કરવામાં આવે છે. આ થેરાપીનો ઉપયોગ તણાવ, અસ્વસ્થતાની વિકૃતિઓ, અનિદ્રા, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક ડિસઓર્ડર વગેરેની સારવાર માટે થઈ શકે છે. આ સાથે ચામડીના રોગો મટાડવા માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત આ થેરાપી દ્વારા ખીલ પણ મટાડી શકાય છે. મડ થેરાપી શરીરને ડિટોક્સ કરીને માનસિક તેમજ શારીરિક રીતે અનેક ફાયદાઓ પહોંચાડે છે. ઘણા રોગોની સારવાર માટે વોટર ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે. ખાસ કરીને ચામડીના રોગો માટે વોટર ટ્રીટમેન્ટ અસરકારક સાબિત થઈ છે, જેમાં લીમડાના પાન, હળદર, કપૂર જેવા આયુર્વેદિક ઘટકો પાણીમાં મિશ્રિત કરી સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગરમ પાણીના કારણે સાંધાના દુખાવામાં રાહત થાય છે. આ સાથે કરોડરજ્જુ માટે સ્પાઇનલ બાથ થેરાપી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત હરસમસાના દર્દોમાંથી રાહત મેળવવા માટે પણ કેટલીકવાર વોટર ટ્રીટમેન્ટ અત્યંત અસરકારક છે. આ ઉપરાંત મેડો વેલનેસ સેન્ટરમાં ઓપન થિયેટર, હર્બલ ગાર્ડન, બેસવા માટે ઇન્ડોનેશિયન ચેર અને સ્ટોન, શુદ્ધ ખોરાક, ફેમિલી, ડિલક્સ, સુપર ડિલક્સ, વિલા, બંગલો જેવી કેટેગરીમાં રહેવાની સુંદર વ્યવસ્થા છે. રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર સ્થિત ધ મિડો વેલનેસ સેન્ટર લગભગ 5 એકરમાં ફેલાયેલું છે. અહીં પ્રાકૃતિક વાતાવરણ સાથે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. અહીંના નિષ્ણાત ડોક્ટર અંકિત તિવારી અને દિવ્યા ભારદ્વાજ પ્રાકૃતિક રીતે રોગોને મટાડી રહ્યા છે. ત્યારે જાણીએ કઈ છે આ પદ્ધતિઓ અને કઈ રીતે તે અસર કરે છે. અહીંના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર અંકિત કુમાર તિવારી 20 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે અને છેલ્લા 5 વર્ષથી મેડો વેલનેસ સેન્ટરમાં સેવા આપી રહ્યા છે. अब तक चैनल के दर्शकों को द मिडो वेलनेस फैमिली की तरफ से नमस्कार. मैं डॉक्टर अंकित तिवारी, BNYS ग्रेजुएट, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस फ्रॉम बैंगलोर. मैं इस फील्ड में नेचुरोपैथिक मेडिसिन के फील्ड में करीब 20 वर्षों से काम कर चुका हूँ और इंडिया के बड़े बड़े सेंटर में काम कर चुका हूँ. कुछ दिन में एब्रॉड में भी काम कर चुका हूँ. अभी हम लोग 5 साल से मिडो के साथ काम कर रहे हैं. मिडो वेलनेस का जो कंसेप्ट है, अभी हम लोग एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कंसेप्ट हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 3 सेंटर एस्टेब्लिश कर चुके हैं. एक राजकोट में है, एक जूनागढ़ में है और एक पोलो फॉरेस्ट में है. और मिडो वेलनेस कंसेप्ट ये है कि पूरे भारत में बहुत सारा सेंटर खोलने की हमारा प्रयास है और धीरे धीरे हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं. मिडो वेलनेस का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोग 2 प्रकार से काम करते हैं, एक प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव. प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि ऐसा बॉडी को डिटॉक्स करना है ताकि आगे चल के बीमारी कोई नहीं हो. तो हमारा प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, रिजुविनेशन थेरेपी होता है और ब्लड सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव करना है, ये थेरेपी होता है. इसके
की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हमारा जो एक जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो ये फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब वेलनेस के अंदर ये सारे लेवल को बैलेंस करना है। तो यदि हम ये डिटॉक्स करते रहें, रिजुविनेट करते रहें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते रहें, ये पांचों बैलेंस कर लें, तो आगे चल के बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होता है। उसके साथ साथ हम डाइट थेरेपी इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग लगभग पूरा बीमारी को इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप इसमें बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या बीमारी ट्रीट करते हैं, इसके साथ साथ प्रिवेंटिव के साथ साथ, तो हमारे यहाँ डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इंसोम्निया, सिरोसिस ऑफ लीवर, किडनी फेल्योर, तो हम लोग एक्यूट डिजीज प्लस क्रोनिक डिजीज दोनों पे काम करते हैं। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नेचुरोपैथी में जितना भी थेरेपी होता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट ये है, क्षितिजल गगन पावक समीरा पंच रचित अधम शरीरा, मतलब हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो नेचुरोपैथी में हम लोग क्या करते हैं, यही पंच तत्वों को हम लोग जो भी लैकिंग है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं, तो कोई बीमारी ट्रीट हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मिडो वेलनेस ये अभी इतना वेल पॉपुलर है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे इस सेंटर में तो इंडिया से लोग आते ही हैं, अब्रॉड से भी लोग आते हैं ज़्यादा। आप बेंगलोर से लोग आते हैं, चेन्नई से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं, पुणे से आते हैं, मणिपुर से आते हैं, बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, और राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, मतलब आप देखेंगे यदि तो पूरे इंडिया में हर एक जगह से लोग आते हैं। कुछ सीज़न हमारा ऐसा होता है जैसे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गल्फ़ कंट्री के लोग आते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लोग आते हैं, इंग्लैंड से लोग आते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से काफ़ी लोग आते हैं। तो ये पूरा जो 4 महीने 5 महीने का हमारा ड्यूरेशन है, लगभग NRI से हमारा पूरा सेंटर फुल रहता है। नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक एजुकेशन प्रोग्राम होता है। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट कराते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट हो गया और हम पेशेंट को छोड़ देते हैं, नहीं। हमारा क्या कंसेप्ट होता है कि ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे किसी को कुछ बीमारी है तो हम लोग उसका ड्यूरेशन तय करते हैं, मिनिमम 7 डेज। किसी का सीवियर है तो 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीने का ट्रीटमेंट होता है। उसका मतलब ये है कि जो भी थेरेपी यहाँ पे हम कराएंगे, जो भी डाइट का हम प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, वो सब कुछ उनको प्लान करके फिर हम फॉलोअप करके बताते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उनको एजुकेट भी करते हैं कि कैसे आपको आगे हेल्दी रहना है, क्योंकि बहुत सारे बीमारी के लोग ऐसे आते हैं जो कि मतलब कहीं भी उसका क्योर नहीं है, कहीं भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट सिखाना भी है, डाइट सिखाना भी है, और कैसे घर पे उसको कंटिन्यू करना है, तो वो भी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ ऐसे हम लोग प्रोग्राम बताते हैं। अलग अलग कंडीशन के साथ अलग अलग प्रोग्राम रहता है। देखिए जैसे मैं बता रहा था कि हमारा कंसेप्ट है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, ये पांचों लेवल को बैलेंस करना होता है। तो आप आज देखेंगे सोसाइटी में जो मानसिक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, बिना किसी रीजन का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोग उसके लिए इतना सुंदर ट्रीटमेंट का डिज़ाइन किए हुए हैं। उसमें क्या होता है कि जो बॉडी बोलता है वही माइंड बोलना चाहिए, मतलब दोनों का सिग्नल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग बैलेंस करते हैं, माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस करते हैं। जो भी मानसिक तरीके के पेशेंट आते हैं, और आपको देखकर ताजुब होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कोई साइकोसोमेटिक डिजीज है जो कि दिमाग से प्रॉब्लम है, या इंसोम्निया जिसको नींद नहीं आती है, या आप सुने होंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट को सुने होंगे, उनको इतना अच्छा रिजल्ट होता है। और लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ऐसा उनको प्रोग्राम करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद उसको थोड़े दिन फॉलो करते रहें। कुछ लोग जो है 10 वर्षों से मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। यहाँ आने के बाद 3 दिन आप देखेंगे, 3 दिन के बाद उनको नींद आना चालू होता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल दोनों लेवल पे काम करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई मेडिसिन की यूज नहीं होते, यहाँ पे हम पूरा हर्बल यूज करते हैं। हर्बल के साथ साथ जैसे मिट्टी है, इससे हमारा ट्रीटमेंट होता है। हमारे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे गार्डन है, हर्बल गार्डन है, तो वहाँ पे तुलसी है, मिंट तुलसी है, एलोवेरा है, हिबिस्कस है, बहुत प्रकार का हर्ब्स है। तो उसी हर्ब से हम लोग
पाउडर बनाते हैं जिसको जैसे ज़रूरत होता है, और उसको हम लोग ट्रीटमेंट में थेरेपी में यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, नेचुरल जब मिलता है तो उनको ज़्यादा मोर इफेक्टिव होता है और फ़ायदा उनको ज़्यादा होता है। जैसे मैं बता रहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम खाते हैं कचड़े के रूप में लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हम खाए जा रहे हैं या जंक फूड ले रहे हैं, बहुत प्रकार का जंक फूड हम लोग ले रहे हैं, मैदा का आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर का आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उनको बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जो भी इकट्ठा हुआ है बॉडी के अंदर उसको एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारे डाइट के साथ, हमारे ट्रीटमेंट के साथ पूरा बॉडी का डिटॉक्स होता है और ये सब एलिमिनेट होता है। फिर उनको एजुकेट करते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आगे आपको क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंज करना है और क्या क्या लेना चाहिए। उसके साथ एक और डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि दिनचर्या क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपके दर्शकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। कैसे हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं भागते भागते आते हैं बड़े बड़े सिटी से। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं है उनको, भागते भागते आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले उनको रिलैक्स करते हैं और अपने डिसिप्लिन में उनको फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, 1-2 दिन बॉडी उससे एडजस्ट करता है, क्योंकि आपका वर्क कल्चर चेंज हो गया, आपका बेड चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। तो वहाँ पे हम लोग एजुकेट करते हैं। इसलिए उनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बना कर रखे हैं कि आपको सुबह 4:30 उठना है। 4:30 उठकर क्या करना है, नाक का क्लीनिंग होता है, आँख का क्लीनिंग होता है, पेट का क्लीनिंग होता है। जब ये पूरा क्लीन होता है तो फिर उनको हम लोग योग के लिए भेजते हैं। तो उनका योग का सेशन होता है, योग का सेशन होता है। उसके बाद हम लोग एक मड पैक देते हैं पेट और आँख के ऊपर। पेट ठंडा, दिमाग ठंडा, बीमारी ख़त्म। तो ये करने के बाद फिर 7:30 तक ये सब कार्यक्रम चलता है। उसके बाद उनको उनके रोग के अनुसार, उनका कुछ काढ़ा होता है, कुछ ब्रेकफास्ट होता है, रोग के अनुसार जिसको जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देते हैं। तो ये 8 बजे का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 9:30 उनका ट्रीटमेंट होता है। अब एक पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, उनके अनुसार पूरा उनका डिज़ाइन होता है ट्रीटमेंट का, तो जाएंगे ट्रीटमेंट लेंगे। फिर उनको उनका लंच होता है। तो लंच में उनके रोग के अनुसार पूरा लंच का मेनू बनता है। जैसे हमारे पास 50 पेशेंट हैं तो अलग अलग सबका अलग अलग लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। तो वो कार्ड लेकर जाएंगे, दिखाएंगे, उनके अनुसार उनको पूरा अपना डाइट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1-2 बजे उनको काढ़ा दिया जाता है। फिर वो भी एक रोग के अनुसार, उनको क्या बीमारी है उसके अनुसार दिया जाएगा। फिर 2:30 बजे से फिर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो उसमें अलग अलग थेरेपी है जिसको जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत सारा थेरेपी है जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगा। फिर उसके बाद 6 to 7 एक बार और योग का सेशन होगा। फिर 7 to 7:30 लेक्चर होगा। फिर 7:30 वो डिनर के लिए जाएंगे। डिनर खत्म होने के बाद 1 घंटे के बाद फिर उनको रोग के अनुसार एक काढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद 9:30 कंपल्सरी सबको ऑफ टू बेड। 9:30 बजे सबको लाइट ऑफ हो जाएगी, सब लोग अपने अपने रूम में जाएंगे। तो ये दिनचर्या हम फॉलो कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आदमी इतना इंगेज हो जाता है कि जो भी अननेसेसरी थॉट दिमाग में आता है, जो भी स्ट्रेस में है, जो भी सब कुछ भूल जाते हैं और हमारे एक डिसिप्लिन के अनुसार एडप्ट होते हैं। ये डिसिप्लिन करने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो उनको पूरी डिसिप्लिन याद आती है और उसमें से कोई 20%, 30%, 40% फॉलो करते हैं और वो रोग मुक्त होना चालू हो जाते हैं। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है, इसको फॉलो करते रहना है। तो ये डिसिप्लिन फॉलो होता है जिसको हम आम भाषा में दिनचर्या बोलते हैं। और समझना इसको बोलते हैं हम लोग, समझना अलग भाषा में तो इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। कि लाइफ स्टाइल उनका गलत था, अब यहाँ पे आकर लाइफ स्टाइल सही करना है। देखिए हम लोग नेचुरोपैथी के अनुसार सबको बोलते हैं कि 1 घंटा एक्सरसाइज कंपलसरी करना है सबको, चाहे वेट ज़्यादा हो या कम हो। और ध्यान, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा ध्यान। मीन्स 1 घंटा फिजिकल लेवल के लिए और 1 घंटा स्पिरिचुअल लेवल के लिए। जब फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बैलेंस होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे। मेरा संदेश ये रहेगा आपके दर्शकों के लिए कि रिटर्न टू नेचर। आप नेचर की गोद में आ जाइए। यदि वेलनेस कंसेप्ट को समझना है एक शब्दों में या नेचुरोपैथी को समझना है एक शब्दों में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ताकि ये समझने में बहुत ही आसान होगा। बॉडी हील इटसेल्फ। जो अपना बॉडी है ये अपने से बीमारी को ठीक करता है।
जस्ट वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी, अपने को अपॉर्चुनिटी देना है। और ये जो वेलनेस कंसेप्ट है, जो वेलनेस थेरेपी है, नेचुरोपैथी, योग है, इतना सारा थेरेपी है, ये उसको असिस्ट करता है। इसलिए नेचुरोपैथी एक अपॉर्चुनिटी देता है बॉडी इटसेल्फ, मतलब बॉडी के किसी बीमारी को अपने से ठीक करने के लिए। હું દેવપરી અતીત સુરેન્દ્રનગરથી આવું છું. મને 1978માં શરદી થયેલી એલર્જીક, એ 40-42 વર્ષ સુધી મેં બીજી બધી દવાઓ લીધી, એનાથી મટી નહોતી. પણ હું માર્ચ 2022માં અહીં મિડોમાં આવેલો રાજકોટ સેન્ટરમાં, અને મને એ શરદી કમ્પ્લીટ મટી ગયેલી. અને એના પછી દર વર્ષે લગભગ હું ડિટોક્સ કરવા માટે કે એ રીતે દર વર્ષે લગભગ અહીંયા મુલાકાત લઉં છું. અને અહીંનો સ્ટાફ છે સારો કોઓપરેટિવ છે, ફૂડ બી આપણને ડેલિશિયસ અને ન્યુટ્રિટિવ મળે છે, એ રીતે બધી રીતે સારું છે. ગઈ વર્ષે મેં જુનાગઢ બી મુલાકાત લીધેલી, અને આ સાલ બી અત્યારે હું અહીં આવેલો છું રાજકોટ સેન્ટરમાં. થેરાપીમાં તો જે શરદી મને થતી એ ક્યાંયથી મટી નહોતી, એ મને અહીં કણે મટ્યા પછી મને એવું થયું કે આના સિવાય બીજે ક્યાંય આપણે જવું નહીં. એટલે મને તો અહીં કણે પાક્કો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે, અને એ 100% મટી જાય છે. બીજા દર્દીઓને કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો બીજી દવાઓ ખાવી, એના કરતાં આ જે દવાઓ વગર જો આપણે સારા થઈ શકતા હોય તો આ ટ્રીટમેન્ટ લેવી સારી. ધ મેડોમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી સેવા આપી રહેલા ડોક્ટર દિવ્યા ભારદ્વાજ આંતરિક શુદ્ધિ અને બાહ્ય શુદ્ધિ સાથે ત્વચાની જાળવણી કઈ રીતે રાખવી તે અંગેની સંપૂर्ण માહિતી આપે છે. अब तक चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर दिव्या भारद्वाज फ्रॉम मिडो वेलनेस राजकोट. हमारा मिडो वेलनेस राजकोट में प्राकृतिक की गोद में स्थित है. हमारे 3 ब्रांचेस हैं, राजकोट, जूनागढ़, अहमदाबाद, पोलो फॉरेस्ट. हमारे यहाँ प्राकृतिक उपचार के साथ बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा थेरेपी, हवन थेरेपी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए हवन थेरेपी एक्सेट्रा. इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक अलग विषय के से रिलेटेड अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें ब्यूटी केयर को हम इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्किन, हमारा हेयर प्रॉब्लम सारे कवर किए जाते हैं. ये सारा हर्बल रहता है, नेचुरल रहता है. लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्यूटी है वो सबसे पहले आपको अंदर से, जब तक आपका बॉडी क्लीन नहीं होगा, आपका बाहर आपका स्किन है, आपका हेयर है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं डेली, वो ठीक नहीं होगा. तो सबसे पहले आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी और डाइट थेरेपी. जब तक आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं है प्रॉपर, आपके अंदर से हर एक सिस्टम डिटॉक्स नहीं है, तब तक आपका ऊपर से स्किन अच्छा नहीं हो सकता. अच्छा जो भी स्किन का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो उससे आप जल्दी से छुटकारा नहीं पा सकते. हम हमारे यहाँ पर जो स्किन का प्रॉब्लम है या हेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उसको नेचुरली ट्रीट करते हैं. बिकॉज देखते हैं कि आजकल जितना भी स्किन से रिलेटेड जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक स्टेरॉइड्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और स्किन हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, और स्किन का लेयर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस है, वो तो स्लो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अलग और बीमारियां सामने आने को देखी जाती हैं. हम हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो सारा नेचुरल रहता है. हर्ब से रिलेटेड हम अपने ट्रीटमेंट में नेचुरल हर्ब्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे मिट्टी है, तुलसी है, एलोवेरा है. इन सबको मिला के हम अलग अलग डिजीज़, स्किन से रिलेटेड अलग अलग डिजीज़ को क्योर करते हैं, ट्रीट करते हैं, एंड काफ़ी लंबे टाइम तक उसको मैनेज करते हैं. स्किन से रिलेटेड जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सोरियासिस है, एक्जेमा है, या एक्ने वल्गैरिस है, या हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन एलोपेशिया भी हम लोग बहुत ईजिली ट्रीट करते हैं. लेकिन हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल लेवल हम पहले बैलेंस करते हैं. वो जैसे जैसे वो बैलेंस होगा, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा,
तो आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज और हेयर प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम देते हैं, जैसे कि मड बाथ है, या फिर नीम हल्दी एप्लीकेशन है, या रोज़ हनी मसाज है, और गंजी लेप है, विटिलिगो एंटी विटिलिगो लेप हम लोग देते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स को हम लोग इन ट्रीटमेंट्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जेल थेरेपी है, अलग अलग थेरेपीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट, बिकॉज हम हमारे यहाँ पर डाइट को एज अ जो फूड है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट। हम यहाँ पर फूड को एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो जो हमारा खाने का जो दिनचर्या रहता है, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि जो हम खाना ले रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसके अंदर बिना तेल मसाले का खाना होना चाहिए, और जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर सारा आपका विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारा प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्किन के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स का ही उपयोग करना है। आप कोशिश करिए कि आप अपने डाइट में विटामिन सी को ज़्यादा इंक्लूड करें, बिकॉज और इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फाइबर रिच डाइट को ऐड करने की ज़रूरत है। जिस फूड में हमें ज़्यादा जिंक मिलता है हमें वो इंक्लूड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए और हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी अपने फेस को लेके बहुत परेशान हैं और हम अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी कंडीशन को और ख़राब कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ नेचुरली 2-3 टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आप अपने फेस पे नेचुरल ग्लो लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके रूटीन में वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, यानी कि आपको पानी की मात्रा पर्याप्त रखने की ज़रूरत है। 3 से 4 लीटर आपका पानी होना चाहिए। उसके अलावा आप अपने रूटीन में विटामिन सी जूसेस या सिट्रस जूसेस आप ऐड कर सकते हो, जिसमें मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला जूस, बेशक आप 2 स्पून ऐड करिए, लेकिन आपको आंवला जूस अपने रूटीन में ऐड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपने रूटीन में सैलड ज़रूर ऐड करिए। हम खाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सैलड को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको सैलड में हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिल रहा है। और कोशिश करिए कि जब भी आप समर्स में रहते हैं तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट तो रख रहे हैं, साथ ही साथ जिस फ्रूट्स में ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है आप ऐसे फ्रूट्स या ऐसे सैलड्स को अपने रूटीन में ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप सिंपल एलोवेरा पैक अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा में हल्दी भी ऐड कर सकते हैं और नीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पैक आप डेली दिन में एक बार लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करना है। धन्यवाद। પ્રાકૃતિક વાતાવરણ, પ્રાકૃતિક ઔષધિઓ અને પ્રાકૃતિક પદ્ધતિઓ સાથે સજ્જ આ સેન્ટરનું ઉદ્દેશ્ય લોકોને શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરાવવા માટે સહાય કરવાનું છે। શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠ જીવન જીવવા માટે ધ મેડો વેલનેસ સેન્ટર શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે। ત્રિદોષ, વાયુ, કફ અને પિત્તથી માંડીને વજન ઘટાડવું, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ અને કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીઓનું અહીં અસરકારક રીતે નિવારણ થાય છે। તેમજ આ પદ્ધતિઓનું કોઈ રિએક્શન કે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ નથી। તેમજ પ્રિકોશનના ભાગરૂપે શરીરના શુદ્ધિકરણ માટે પણ દૂર દૂરથી લોકો અહીંયા આવતા હોય છે। તો આપ પણ એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો ધ મેડો વેલનેસ સેન્ટરની।